Good morning, dear aspirants. We are again back on your own platform with a very crucial topic, or we can say a very weightage containing topic, renin angiotensin aldosterone system, or we can say it is a mechanism. Why I'm saying this is a mechanism? Because this is an auto-regulating mechanism of kidney to control the glomerular filtration rate, or we can also say that to control the renal blood flow. So in today's lecture, as you can see, that we are going to understand that how kidney is auto self-regulating the GFR level in the kidney to maintain the body's homeostasis. So without wasting the time, let's start. As we have to study RAS mechanism, which stands for renin angiotensinogen aldosterone system. Now you can see this elaborate name. This is not a very big deal. Renin beta, this is an enzyme. This is an enzyme which is basically produced by the kidney. This angiotensinogen is also present in blood, which is basically released by liver. This aldosterone is basically an enzyme which is released by adrenal cortex. Adrenal cortex. And by the help of these three, renin, angiotensinogen, and aldosterone, by the help of these three enzymes, we are going to auto-regulate the glomerular filtration rate of kidney. Okay, now see how. Now see, I'm repeating my lines. When there is a fall in GFR, which basically stands for glomerular filtration rate. What is this GFR? Let me tell in very short lines because we have already done that. What is GFR? Basically, the amount of filtrate which is going to enter inside the capsular space of Bowman's capsule. This is called the glomerular filtration rate, in short GFR. It means this is our Bowman's capsule. From here, the filtrate is being entered into the filtrate, or we can say the capsular space. This is considered as filtrate. And here, if the GFR falls down, it means the less amount of filtrate is coming inside the Bowman's capsule that will harm and affect the formation of urine, because we know that minimum 1.5 liter of urine in a day is essential for the elimination of the harmful excretory products from our body. And if the filtrate will be lesser than a normal average, it means GFR will already been in a falling manner, and urine will also be an influenced. Okay, so see how we are going to auto regulate this balance by kidney. चलो देखो बेटा, this is our Bowman's capsule. This is GFR. Now see what happens. As soon the GFR rate comes down, this message is automatically sent to automatically sent to kidney. Kidney start releasing an hormone, or we can say an enzyme called renin. ये renin जाएगा किसके पास? Yes, कहीं नहीं जाएगा. It will convert the angiotensin into angiotensin 1. It will convert angiotensinogen, which is present inside the blood, but it is being released by liver.
It means liver is releasing the angiotensinogen into the blood, and this renin will convert these angiotensinogen into angiotensin 1 in angiotensin 1. Now, this angiotensin 1 is by nature in inactive form. It is in inactive form. So we have to activate this, or we can have to change this form into an active form. So this angiotensin 1 is an inactive form, so we have to change this into angiotensin 2. So hence this angiotensin 1 is again converted into angiotensin 2, which is a very strong vasoconstrictor. Yes, I'm repeating my lines because it is a very strong vasoconstrictor. So it will suppress the blood vessel, which will lead to the increase in blood flow, blood volume, and finally the GFR. It means, देखो बेटा हुआ क्या, जैसे ही GFR का रेट गिरा, ये मैसेज पहुंची किडनी के पास, किडनी ने रिलीज किया रेनिन, रेनिन गया ब्लड के पास, जो कि ब्लड में पहले से एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट बस है, लेकिन ब्लड में ये सिर्फ प्रेजेंट भर है, बना ब्लड में नहीं है, बना लीवर से है। अब इस एंजियोटेंसिन 1 को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, किसने? रेनिन ने। So this conversion will only takes place in the presence of renin. So renin has converted this angiotensinogen into angiotensin 1, but unfortunately this angiotensin 1 is an inactive form of angiotensinogen. So ये काम नहीं करेगा। तो angiotensin 1 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर लंग्स एक रोल प्ले करेगा। देखो कैसे। सो लंग्स के पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके प्रेजेंस में ये इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 is again converted into angiotensin 2, and this angiotensin 2 is a very strong vasoconstrictor, very strong vasoconstrictor, वेरी स्ट्रॉन्ग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब जब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड वेसल्स को दबाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और फाइनली जो जीएफआर गिरा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म कुछ कर नहीं रहा, ये बेसिकली जो जीएफआर गिरी रहती है उसको ऑटो रेगुलेटरी मैनर में किडनी खुद ब खुद बिना किसी एक्सटर्नल अफेंस के मदद से अपने आप इसको रेगुलेट करता है। अगर कर लिया, दिस मैकेनिज्म बाय विच किडनी हैज डन दिस वर्क इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बेटा आपने देखा होगा अभी तक हमने इस रेनिन का इस्तेमाल कर लिया, एंजियोटेंसिनोजन का कर लिया, बट नाम में एक मिसिंग है, एल्डोस्टेरोन। अब देखो वो कहां से आया। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, as soon there is a formation of angiotensinogen, this is being converted into angiotensin 1 and further into angiotensinogen 2। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन 2, और इसको मैं सेकेंड भी कह सकता हूं, ये ना ही सिर्फ और सिर्फ जीएफआर बढ़ाएगा, और तो और ये जाकर एक्ट करेगा किस पर? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। किस पे? एड्रीनल कॉर्टेक्स। यस, दिस इज एन पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स। जैसे ही एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है इसका एक इन्फ्लुएंस पहुंचा, वैसे ही उन्होंने क्या किया, एड्रीनल कॉर्टेक्स को मैसेज दिया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स इज गोइंग टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। Aldosterone. This aldosterone is released by adrenal cortex on the influence of angiotensin 2, and this aldosterone is basically going to act on the distal convoluted tubule, and this distal convoluted tubule starts reabsorption of sodium and water. Reabsorption of sodium and water. आया समझ में? आया ना? अब देखो, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो जाकर के वेसल्स को प्रेस करके भी जीएफआर बढ़ा रहा था, और इस तरीके से एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रीनल कॉर्टेक्स पर ऐड करके वहां से एल्डोस्टेरोन निकलवा करके, एल्डोस्टेरोन जैसे ही
जा करके डीसीटी पर एक्ट करेगा, डीसीटी स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग और वी कैन से रीअब्जॉर्बिंग द सोडियम एंड वाटर, और जैसे ही सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होगा वैसे ही खुद ब खुद जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वॉल्यूम, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था वो वापस से बढ़ने लगेगा। इसका मतलब दोनों तरीके से जीएफआर को बढ़ाया ही गया है। आया समझ में? तो ये सारे मैकेनिज्म आपस में जुड़े थे, जिसमें शुरुआती रूप में रेनिन, बीच में एंजियोटेंसिनोजन और अब एल्डोस्टेरॉन, इन तीनों ने मिलकर के काम किया। इसलिए दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म ऑफ किडनी। तो मैंने क्या देखा बेटा, फिर से ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि किडनी ऑटो रेगुलेट्स जीएफआर। हाउ? हाउ? सो बाय रास मैकेनिज्म। इसका मतलब अगर जीएफआर नेचुरली बॉडी में घटती है तो नेचुरली किडनी ऑटो रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, और किसके मदद से? तो रास मैकेनिज्म की मदद से। अब मान लो बढ़ाते बढ़ाते गलती से ज्यादा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ए नॉर्मल एवरेज, देन व्हाट विल हैपन? तो हमारे पास एक मैकेनिज्म और होनी चाहिए, जो घटने पर हम बढ़ा ले रहे हैं तो बढ़ने पर घटने वाला भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो नाउ इट्स टर्न फॉर अ मैकेनिज्म व्हिच विल बी एंटागोनिस्टली वर्किंग ऑन द रास। इसका मतलब ये जीएफआर जो ये घटा घटा हुआ बढ़ा रहा था रास, अब एक ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं जो अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो उसको घटाने का काम करे। तो नाउ इट्स टर्न फॉर एएनएफ मैकेनिज्म, एट्रियल नाइट्रोयोटिक फैक्टर मैकेनिज्म। अब देखो बेटा, दिस इज एएनएफ मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा देखो, बेसिकली फुल फॉर्म इसका क्या है देख लो, ए एन एफ। इसमें ए स्टैंड्स फॉर एट्रिया, एन स्टैंड्स फॉर नेट्री एंड एफ फॉर फैक्टर। नेट्री से याद रखना बेटा सोडियम, सोडियम आयन। एट्रिया से याद रखना चेंबर ऑफ हार्ट, जो अपर चेंबर्स होते हैं ना हार्ट के, उसको एट्रिया कहते हैं, चेंबर्स ऑफ हार्ट। और ये दो ही होते हैं। अब देखो हाउ इट विल वर्क। लेट assume that this is a diagram of human heart। मैं एक ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व वाला चेंबर, ये बाइकस्पिड वॉल्व वाला चेंबर, ये इसके वेंट्रिकल्स हैं, और ये दोनों एट्रिया हैं। ये दोनों क्या है? एट्रिया हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, deoxygenated bloods travel inside the right auricle initially। इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस विल रिच, सबसे पहले कौन से चेंबर में रिच करता है? राइट ऑरिकल। दिस इज राइट ऑरिकल। ठीक है। एज सोन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेस द राइट ऑरिकल चेंबर, these blood is basically in pressure, this is flowing in pressure। तो इन प्रेशर के वजह से जो एट्रिया की दीवारें हैं उस पर एक अच्छा असर नहीं पड़ रहा, जिसके वजह से एट्रिया स्ट्रेच करेगा, वॉल्स ऑफ एट्रिया विल स्ट्रेच एंड स्टार्ट रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब देखो हमने पढ़ा था ग्लैंड्स हार्मोन निकालने के लिए कैपेबल होते हैं, और हार्ट हमने ग्लैंड में नहीं पढ़ा, तो हार्ट यहाँ पे हार्मोन कैसे निकाल रहा है? हार्ट अगर ग्लैंड है ही नहीं तो हार्मोन कैसे निकाल सकता है ये? तो याद करिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक था, सम ऑर्गन्स आइदर देन ग्लैंड्स कैन आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। ये वही है, हार्ट ग्लैंड न होते हुए भी हार्मोन निकाल सकता है, बट नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, ओनली इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब जब हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तब वो कुछ अपने स्पेशल एक्शंस दिखा सकता है। हार्ट की दीवारों पर जब तक प्रेशर नहीं पड़ रहा था ब्लड का तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही यहां पर प्रेशर से ब्लड पहुंचा, कैसे? प्रेशर, तो इन दीवारों पे भाई असर पड़ रहा होगा उस प्रेशर का। तो नाउ द वॉल्स ऑफ एट्रिया, देखो होता क्या, राइट एट्रिया में क्या पहुंचा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे पहुंचा हुआ है? भाई प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ा हुआ है। अब जब जीएफआर बढ़ा है, ब्लड का फ्लो तेज होगा, एट्रिया में भी तेज पहुंच रहा है, तो इनकी जो वॉल्स हैं ये क्या करेंगी? स्ट्रेच करेंगी। स्ट्रेच करते ही इनमें से एक हार्मोन रिलीज होगा, विच हार्मोन इज कॉल्ड ANF। ये ANF इज अ वेरी गुड वेजोडाइलेक्टर, इज अ वेजोडाइलेटर। अब ये बताओ, जब ये वेजोडाइलेटर है तो डायलेट करेगा ल्यूमेन ऑफ वेसल्स को, फैलाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा? ब्लड की प्रेशर जो है वो कम हो जाएगी, और जिसके वजह से जो प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा था हार्ट के दीवालों पर खराब असर करने, वो नॉर्मल हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हार्ट की ऑटो रेगुलेटिंग मैनर है, इसीलिए इसको ANF मैकेनिज्म कहते हैं। शॉर्टली मैंने क्या कहा फिर समझना। प्रेशर से जब ब्लड हार्ट के एट्रिया में पहुंचा, हार्ट की एट्रिया की जो वॉल्स हैं इनमें एक स्ट्रेच आया, स्ट्रेच के वजह से यहाँ से एक हार्मोन निकला। इस हार्मोन का नेचर था वेजोडाइलेशन का, तो इसने वेजोडाइलेट किया, जिसके वजह से जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था वो घट गया। तो दिस इज कॉल्ड ANF मैकेनिज्म। आया समझ में? तो रास मैकेनिज्म और ANF मैकेनिज्म को क्या मैं एक दूसरे के एडवर्स मैकेनिज्म कह सकता हूं? बिकॉज रास मैकेनिज्म is increasing the GFR when there is a fall of GFR normally in the body. But in ANF mechanism, when there is an increase in blood pressure which is affecting the walls of atria, ये उसको रेगुलेट करेगा। तो ये था रास और ANF मैकेनिज्म। इतना में कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो बेटा, एक चीज और समझना बस। मैंने यहां पर देखा था कि इसमें रेनिन का रोल प्ले है, इसमें रेनिन का रोल प्ले है, एंजियोटेंसिनोजन का रोल प्ले है, एल्डोस्टेरॉन का रोल प्ले है। और एक चीज याद रखना, मैकेनिज्म चाहे कोई भी हो, इसके तीन चीजों को आप याद रखना। क्वेश्चन इन तीन चीजों से ही बनता है। पहला, व्हेन दिस इज बीइंग स्टार्ट, कब ये मैकेनिज्म शुरू होता है, ये पहला सवाल का आंसर आपको आना चाहिए। दूसरा, इसमें रोल किसका किसका है। और तीसरा, व्हेन इट स्टार्ट्स निगेटिव फीडबैक, मतलब कब ये निगेटिव फीडबैक पहुंचाएगा। तो इस तीनों का आंसर मिल गया क्या आपको? पहला, कब शुरू होगा? जब जीएफआर गिरेगा, ठीक है। दूसरा, किसका किसका रोल है? रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन का। कब निगेटिव फीडबैक आएगा? जब तक नॉर्मल नहीं कर दे रहा तब तक। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए, ये था रास और ANF मैकेनिज्म, ठीक है। हमने आज शॉर्ट वीडियो इसका बनाया, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो रास दिया हुआ है, मुश्किल से 9 से 10 लाइन में दिया है, शॉर्टली बता दिया है, नहीं कन्वर्ट किया था इसको इतना इलोबरेट मैनर में, इसलिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, ठीक है, बने रहिए। थैंक्स।